Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। चर्चा करेंगे कैसा रहेगा अगले सप्ताह शुरू होने वाला बाजार। दिन शनिवार का है। श्रोता हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीफोन लाइंस पर, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स वही हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद गौरव और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। Now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Thank you, Harsh, and Sharaji, welcome to the program. Thank you so much. A quick look at the headlines. Health Minister Mansukh Mandavia says the country has started manufacturing 38 active pharmaceutical ingredients in the last 1.5 years. Government allocates 1,39,579 crore rupees to extend BharatNet in 6,40,000 villages. And on Wall Street, the Dow falls 0.4% on a government jobs report showing a slowing but still tight U.S. labor market. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश ने पिछले 1.5 सालों में 38 सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व बनाने शुरू किए हैं। देश के 6,40,000 गांवों में भारत नेट का किया जाएगा विस्तार। सरकार ने 1,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। और अमेरिकी बाजारों में रोजगार के कमजोर आंकड़ों की वजह से डाउ जोन्स 0.4% गिरा। Well, on to our first story. The country has started manufacturing 38 active pharmaceutical ingredients or APIs in the last 1.5 years, on which it was import dependent under the production-linked incentive scheme for the sector, Union Health Minister Mansukh Mandavia said today, speaking at the inaugural event of the Healthcare Summit organized at the Indian Institute of Management, Ahmedabad. The Health Minister said, through the production-linked incentive scheme, we tried to ensure that the country does not have to import 54 active pharmaceutical ingredients from abroad, and our formulation industry gets them domestically. I am happy to share that in just a year and a half, India has started manufacturing 38 active pharmaceutical ingredients, which is an example of Atmanirbhar Bharat. Mr. Mandavia said that the 2017 border standoff with China at Doklam triggered India to rethink its self-reliance strategy regarding active pharma components, as it was dependent on just one country for the import of 95% of APIs for the formulation industry. Well, now we also have our first caller from Kolkata. Vikas, welcome. Please ask your question. जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्कार। मैं विकास महतो एयरपोर्ट कोलकाता से बात कर रहा हूँ आपसे। जी बताएं विकास जी। जी सर, मेरा टेक्नोलॉजी सेक्टर के थोड़ा इन्वेस्टमेंट है जी, लॉन्ग टर्म के लिए सर। तो इनका अभी बाईबैक प्रोसेस हुआ, तो ये क्या है हम लोगों के लिए, ये कैसा बेनिफिट है या लॉस है, जरा विस्तार में बताएंगे आप, प्रोसेस क्या है जी ऐसा करता है। जी विकास, पहले तो आपने जो आपके पास रेडियो रखा है उसकी वॉल्यूम डाउन करें, क्योंकि हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है हम खुद से ही बात कर रहे हैं। खैर, आईटी सेक्टर का आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये आपको इसके लिए मुबारकबाद कि आपने ठीक सेक्टर चुना है।
और ठीक अवधि के लिए चुना है। अभी बाईबैक आया था, हम यहाँ कंपनी विशेष की बात नहीं करते, पर बाईबैक का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है विकास। आपके पास खुद ब खुद अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपके पास एक इंटीमेशन भेजी जाती है आपको खरीदने के लिए। आपको ईमेल या आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर या एसएमएस के जरिए आपके पास मैसेज आएगा। अगर आपके पास नहीं आता है तो आप अपने ब्रोकर को भी इस मामले में कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी जब बायबैक करती है तो मैं ये बता दूं सभी श्रोताओं के हित के लिए कि कंपनी जब बायबैक करती है तो एक अच्छा संकेत होता है कि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, अपने शेयर्स को खुद इकट्ठा करना चाहती है, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहती है। इसका अर्थ है कि कंपनी को भविष्य में कुछ अच्छा बड़ा प्लान है या उनको लग रहा है कि उनकी वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स बढ़ने वाली है। तो मुझे लग रहा है लोगों को बायबैक को एक शुभ संकेत की तरह लेना चाहिए विकास। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको अपने पास इंटीमेशन आएगी और आप अपने ब्रोकर के थ्रू या जिस भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, आप आसानी से वहां पर फॉर्म आएगा, आप उसको भरेंगे और आपके शेयर्स बायबैक करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी के मदान दिल्ली से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। मार्केट मंत्रा की टीम को नमस्कार, पर्टिकुलर टू मिस्टर कोहली। नमस्कार मदान साहब। वेरी सिंपल इन गिविंग रिप्लाई टू द पीपल। आई हैव बीन रेगुलर लिसनर टू हिम। थैंक यू सो मच सर। अच्छा कोहली साहब, मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है जी। जब हम कोई डेट फंड से रिडम्पशन लेते हैं जी, वो 2050 में मैंने कोई डेट फंड खरीदा था जी, अभी मैंने उसकी रिडम्पशन करवाया, कुछ आउट ऑफ 3 लाख आई हैव रिडीम्ड 1 लाख। ओके। आफ्टर इंडेक्सेशन there was a gap difference of around 30,000. हाँ जी। So that 30,000 जो capital gain है जी, that will be part of 1 lakh capital gain which is free from tax. This is my simple question. अच्छा मदान साहब, पहले तो आपकी नॉलेज को मैं सलाम करता हूँ। काफी हद तक आपको ऑलमोस्ट 80-90% जो उन्होंने बताया, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आपको मालूम है। 112A वो सेक्शन है जिसका आप जिक्र करें, जिसके अंदर 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, पर वो मदान साहब इक्विटी के लिए है। उसमें क्योंकि आपका ये डेट फंड है, आपने अगर मैं ध्यान से सुन रहा था, तो क्योंकि ये डेट फंड है तो ये उस 112A में कवर नहीं होगा, वो इक्विटी के लिए और स्टॉक्स के लिए है। तो मदान साहब, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिल गया होगा। आप बिल्कुल कैलकुलेट करिए और उसको फाइल करिए। आपने अगर प्रॉफिट कमाया है, थोड़ा बहुत टैक्स भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, पर 112A जो कि 1 लाख की एग्जेम्पशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो डेट फंड को कवर नहीं करती है। जी। वीरेंद्र बैतूल मध्य प्रदेश से हैं, बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी, सवाल पूछें आप। सर, मेरा छोटा भाई सर अभी इंजीनियरिंग कर रहा है और सडनली सर उसका मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है और वो अपनी पढ़ाई पे सर ना ध्यान देते हुए, वो इंजीनियरिंग पे ना ध्यान देते हुए सर वो मार्केट में ट्रेडिंग करने लगा है। तो सर हमारा ये कहना था कि सर उसको ये अपना सारा जो एजुकेशन है वो लेके प्रॉपर एक नौकरी हासिल करके देन उसके बाद में ये चीजों पे ध्यान देना था। तो सर उसका फोकस इधर बढ़ गया है, तो सर अभी उसको आप क्या एडवाइस करेंगे सर, ये करना चाहिए सर ट्रेडिंग? वीरेंद्र जी, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भाई साहब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, क्योंकि आप ये हमारे मुंह से, आपने वैसे उनको सलाह ठीक दी है, पर आप शायद हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो हम जरूर बिल्कुल आपने जो बात कही उसको एको करेंगे। अपने मेन स्ट्रीम काम इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं तो उनको वो पूरा करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक दफे इंजीनियरिंग उन्होंने पूरी कर ली, उसके बाद वो मार्केट पे दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कई दफे बहुत ज्यादा रुचि बन जाए तो छूट भी जाती है, कोई ऐसे हालात बन सकते हैं, छूटनी नहीं चाहिए। आपका भी शायद कंसर्न यहीं पर है कि पहले अपनी भैया पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो भी करना है करते रहना बाद में। तो बिल्कुल ठीक है। अगर वीरेंद्र जी के भाई साहब अगर हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं तो भाई साहब, आपके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी इंजीनियरिंग पूरी करें, साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आपको शौक लगा है, शौक के तौर पे करते रहिए, पर ऐसा ना हो कहीं कि इंजीनियरिंग के बीच में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस घुस जाएं या मतलब पता लगे कि हम EBITDA देखने लग गए इंजीनियरिंग छोड़ के। तो साथ साथ दोनों को बनाए रखिए, पर अपने मेन स्ट्रीम काम को पूरा करें। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं गौरव और हर्ष जो कि स्टॉक मार्केट में हैं। हाँ, लेकिन आपको हैरानी होगी, मैं तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि मेडिसिन प्रोफेशन से आते हैं, पर वो फुल टाइम अब इस काम में लग गए हैं। पर क्योंकि जो लोग लंबी अवधि के लिए वीरेंद्र इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, खासकर कोविड के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने कामकाज जब रुक गए थे तो ये काम शुरू कर दिया, वो वापस अपने काम पे चले गए, क्योंकि उन्होंने, कुछ लोगों ने तो अंग्रेजी में बोलते हैं दे बर्न देयर फिंगर्स, तो उनको नुकसान हुआ। तो इसलिए बिल्कुल भाई साहब, फिर से बुलंद आवाज करके मैं बोलूंगा, आप प्लीज अपनी इंजीनियरिंग करते रहिए। आपने बहुत सही बताया। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा शरद जी, वो ये कि अगर पढ़ाई के बीच में इन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन देखे तो पढ़ाई का फ्यूचर्स
खराब हो जाएंगे और जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आप कभी भी घुस सकते हैं। आपने तो बड़े इसको शायराना बना दिया, बहुत बढ़िया। किसी भी उम्र में, लेकिन इंजीनियरिंग एक बार छूट गई तो उसमें फिर आप नहीं प्रवेश पा पाएंगे। Absolutely. We now move to Bengaluru. N.R. Prasad is on the line. Please ask your question, sir. Good evening, Market Mantra. Good evening. Mr. Kohli, you have been wonderful all along. My pleasure, sir. Good evening, Mr. Prasad. Mr. Kohli, there's one feedback and one question to you. Please. The feedback is, see, on Monday, this week Monday, I just asked a question for the new companies which is being invested. Out of that, one company is going to be investing, or rather starting by end of this year. And I just asked a question about that particular company belonging to specifically said that it is an automobile sector, because you don't answer on a specific company this thing, so you answer as a specific automobile sector. Yeah. They did not respond, and they went to the next question. Not an issue. You may ask your question. You can ask right now, please. Mr. Prasad. If you want, you can ask right now, because sometimes there is paucity of time as well. But anyway, sometimes, even it happens with me that, it slips off your mind when there are multiple questions being asked. Mr. Prasad, please do ask the question. Ask that question only. Leave the other question for next time. That is not the question. On Wednesday, Ms. Anubha Ratki and one expert, Mr. Avinash, discussing about the same two mobile sector companies. Mr. Prasad, do you have any question today? Please, because we have callers waiting here. Yeah. So, आपके कोई सवाल हैं तो आप सीधा वो सवाल पूछ लें. Company. You say that specific companies you don't discuss, but the same thing companies are doing. Okay, got it. Mr. Prasad, do you have a question for Mr. Kohli? He wants to hear, if you have a question specifically for him, please ask. Yeah, my today's question is, see, Morgan Stanley says that Indian stock as at number one among the emerging markets. Yeah. Is that it will be 6.7 trillion by financial year 2031. Yeah. This rating as number one emerging share market, how would it impact on the Indian market? That's my question. Okay. Well, I think any positive news, Mr. Prasad, is always welcomed, and especially if it's coming from an analyst and a research agency which is international, as senior as Morgan Stanley. And we have recently seen, I would like to put on record a very interesting fact here with Gaura and Harsh's permission, that it was being said that because all these research agencies, they're based out of America, so they normally favor America and they never give rating. But we saw Fitch rating where they downgraded America because of certain debt, policies and so on and so forth. Right. So I think it's a very fair assessment, Mr. Prasad. It's a thing to rejoice. If I was you, a keen follower of market. In fact, the day this news came, I had a small party with my family. Any news about India doing well, I think should be celebrated by every Indian. That's what I feel. So I think there is something to be feeling excited about and something to be rejoicing on. बिल्कुल. Next caller जितेंद्र जयपुर से सवाल पूछ लें. जितेंद्र जी. Hello, जितेंद्र from जयपुर. Hello. आई थिंक की आवाज नहीं आ रही है. दूसरे कोलकाता चलना पड़ेगा. अतनु जी हमारे साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका अतनु जी. हाँ, नमस्कार. Good evening, sir. Good evening to everybody. Sir, I Atanu from Kolkata. Sir, my question is why, sir, profitable company going to delisted from existing exchange, sir. So this is my question. Thank you. Okay, Mr. Atanu, it is not necessary that only loss-making companies or only companies which are going to become defunct, only they get delisted. It's quite possible for a profit-making company to voluntarily try and get out of the market for various reasons. Sometimes there are corporate mergers, there are corporate acquisitions, there are corporate restructurings which happen. Sometimes a company also plans to, consolidate its shareholding and probably relaunch itself by a different name, or probably diversify into other businesses. So there are multiple corporate considerations, Mr. Tanu, based on which a delisting decision can be taken. Delisting should not necessarily be connected with company going downhill, is my answer to your question. From Kolkata, we move towards the southern part of the country, Chennai. Kashinath ji, Mr. Kashinath, you're online. Please ask your question. Good evening, Market Mantra team, sir. Good evening. डॉक्टर कोहली सर से मेरा सवाल ये है जी कि जो
हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2046 में इंडिया विकसित हो जाएगा जी। विकसित हो जाएगा, उसका बाद में क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? क्या हमारे देश में सब अमीर आदमी बन जाएंगे? ओके, भूखा नहीं रहेगा? इसका बारे में थोड़ा जी। देखिए काशीनाथ जी, अगर आप कभी मैंने पूरी दुनिया घूमी है, एक बार नहीं कई बार घूमी है, तो मैं विकसित देशों में भी गया, विकासशील में भी गया। तो विकसित देश में आपने जो बात बोली, एक तो वहां गरीबी नहीं होती है बिल्कुल भी, सब लोग समृद्ध होते हैं, सरकारों के पास पर्याप्त रिसोर्सेज होते हैं कि वो हर व्यक्ति को मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता देना है, दे सकती है। बहुत सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। जिन लोगों ने, जो श्रोता हमको सुन रहे हैं और जिन लोगों ने विदेशों में भ्रमण किया है विकसित देशों में, उन्होंने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लोग कहीं भी गरीबी मुफलिसी आपको नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल काशीनाथ जी ठीक पकड़ा है। जब हम विकसित हो जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी अभी कमियां हैं हमको दिखती हैं, तो आने वाले 25 साल, जिसको अमृतकाल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार प्रयासरत है और हम उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे जहां पर एक समृद्ध देश होगा, गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, कृषि क्षेत्र हमारा मुनाफे में होगा और यहां पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, यहां पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, सड़कें, बिल्डिंग्स, बिजली, एनर्जी, जितनी भी चीजें, जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सब उचित मात्रा में उपलब्ध होंगे। इसी को विकसित देश कहते हैं। यही सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और मुझे लगता है ये जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, ये सपना नहीं है, हम जरूर वहां तक, हो सकता है, मेरा तो आकलन कहता है मुझसे शीघ्र ही वहां पर काशीनाथ जी पहुंच जाएंगे। और आपने देखा किस तरीके से हम दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, आज हम 5वीं हैं और तीसरी में हम पहुंचने वाले हैं। तीसरी तो हम बहुत जल्दी है, तीसरी तो आप बिल्कुल हमारे समझिए, एक अंग्रेजी बोलते हैं, विद इन स्टोन्स थ्रो है। बिल्कुल, और हमारे ऊपर उसके बाद सिर्फ चीन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही होगी। भारत तीसरे नंबर पे जल्द होगा। एसपीएस जैन ग्रेटर नोएडा से, जैन साहब जल्दी से सवाल पूछ लें, आप रेगुलर कॉलर हैं। जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। वीक मार्केट टॉप पर गया, फिर उसके 3 दिन तक डाउन रहा और लास्ट में क्लोजिंग होते समय थोड़ा ऊपर हो गया जी। वॉज इट जस्ट ए कंसोलिडेशन और डज इट इंडिकेट एनीथिंग एल्स? Mr. Jain, the markets, if you see the last week, yes, you're right, absolutely in your assessment. The markets did show a bit of volatility this week. Yes, I think there were some international factors which were governing the movement of the market. Kuch to result season bhi is also on, so some companies were giving their results as well. But if you saw in the beginning of the week, we had Fitch rating coming for America, in which market reacted. I mean, world markets became nervous that the biggest economy in the world is showing downfall in its rating. So the markets became concerned. Then, of course, the job data came recently, and then the markets reacted. Little bit of consolidation, Jain Sahab, if I summarize my comments and to answer your question very precisely, little bit of volatility because of international factors, a little bit of consolidation, which is what you saw last week overall. Yeah. Right. We move on to our next item. Sure. देश भर में सरकार ने 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट की विस्तार परियोजना लगभग 2 साल में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60,000 ग्राम पंचायत गांवों में 8 महीने में प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद विस्तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया। संचार मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत नेट प्रायोगिक परियोजना के तहत 1,94,000 गांवों में पहुंच चुका है और अब तक 5,67,000 घरों में भारत नेट कनेक्शन सक्रिय हो गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2,50,000 रोजगार भी उपलब्ध होंगे। पवन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, आप सवाल पूछ लें। जय हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार बोल रहा हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरे साथ 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें जब इसकी मैच्योर होती है तो उसमें जो है वो क्या हमें जो है वो गोल्ड के रूप में भी मिल सकता है, और दूसरा जो है वो मैच्योरिटी बेस में जो है वो हमें गोल्ड मिल सकता है। और दूसरा जो है वो मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पापा जो है टमाटर के बिना जो है वो सब्जी का मजा नहीं आ रहा है, तो ये टमाटर के रेट जो है वो कब तक कम हो जाएंगे? अच्छा। पहली बात तो पवन जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बिल्कुल आप अगर रिक्वेस्ट डालें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मैं जानकारी के लिए बता दूं श्रोताओं की कि उनका बैकिंग पूरा का पूरा गोल्ड से होता है। सरकार के पास उतना गोल्ड रिजर्व होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आपको सरकारी खजाने से वो उसके बराबर का गोल्ड मिल सकता है। दूसरा,
आपके बच्चों की टमाटर खाने की इच्छा हो रही है और टमाटर की महंगाई अगर बच्चों को टमाटर से दूर रख रही है, तो मैं जानकारी दूंगा ये मौसमी मार है पवन जी, और ये बात सच है कि टमाटर के रेट मौसम की वजह से बरसात इतनी ज्यादा हुई है जी। और सारा मौसम का हिसाब किताब थोड़ा सा बिगड़ गया जुलाई के महीने में, जून के एंड से शुरू हो गया था। तो मुझे उम्मीद है सरकार प्रयासरत है। पीछे सरकार ने 80 रुपए 70 रुपए पे बेचने के स्टॉल्स भी लगाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप किया था और सरकार इसके लिए पूरी नजर बनाए हुए है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी और वित्त मंत्रालय भी इस पे नजर रखे हुए, पूरी सारा इस पे नजर है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि टमाटर ऐसी चीज है, हालांकि ये मार्केट मंत्रा से संबंधित नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखा गौरव टोमेटो प्यूरी यूज कर रहे हैं। प्यूरी यूज कर रहे, गौरव ने खुद टमाटर छोड़ दिया है। नहीं, टमाटर मैं छोड़ने को तो नहीं इनके बच्चों को कहूंगा, पर टमाटर प्यूरी अगर आपके आसपास मिल रही हो, वो इतनी महंगी बहुत टमाटर से, हाँ, वो बहुत अच्छा है। और कुछ लोग तो अमचूर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये रेसिपी का प्रोग्राम होता तो मैं शायद उस पर फोकस करता, पर क्योंकि मार्केट मंत्रा है। पर चिंता नहीं करिए पवन जी, बहुत जल्द आपको सस्ते होते दिखाई देंगे। बच्चों को हम अपनी तरफ से आज सांत्वना दे देते हैं जी। बिल्कुल। जितेंद्र जयपुर से फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। हाँ सर, हमारा 2 सवाल है। एक तो जैसे अगर हमको फ्रेश एंट्री करना पड़े अभी, तो कौन सा सेक्टर जैसे अभी लेने लायक है जी। दूसरा कि सर जैसे सेक्टर होता है FMCG, IT, फर्मा जी, कई सेक्टर होता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री और टाइटन को किस सेक्टर में मानेंगे हम? देखिए यहाँ जितेंद्र जी, पहले आपके दूसरे भाग पे आ जाता हूँ। यहाँ हम कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं करते, पर आपने चलिए जनरल पूछा है। रिलायंस जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस में है, और टाइटन जो है आपको पता है वो गोल्ड और घड़ियां बनाते हैं, मोस्टली ज्वेलरी में भी अब आ गए हैं। खैर ये तो चलिए सेक्टर की बात है। बाकी अगर आप सेक्टर पूछ रहे हैं कि अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो फ्रेश एंट्री के मुझे लगता है कि आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, आप FMCG सेक्टर को देख सकते हैं और एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं। मैं आपको 3 सेक्टर बता रहा हूं, हालांकि मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। और लेकिन डिफेंस पे आजकल बहुत जोर है, क्योंकि भारत बहुत आत्मनिर्भर हो रहा है। 15-16 हजार करोड़ का हमारा निर्यात हो चुका है, जहां एक समय पे एक बोल्ट भी हम नहीं बनाते थे डिफेंस का। आज हम 15-16 हजार का, और अब तो हम हवाई जहाज बनाने लग गए हैं। तो मुझे लगता है जितेंद्र जी, ये 3 सेक्टर्स मैं दोहराता हूं, आप डिफेंस पर, FMCG पर और एनर्जी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में। बाकी और जाऊं मैं तो IT भी है और बहुत सारे सेक्टर्स है, पर मैं आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मुझे नहीं मालूम आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर लंबी अवधि का जितेंद्र नजरिया जरूर रखिएगा इन सेक्टर्स में जाते वक्त जी। When you say लंबी अवधि, शरद जी, what does that mean? 3 to 5 years, 3 से 5 साल कम से कम रखिए। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, गौरव आपने बहुत दुखती रख पर हाथ रख दिया, कि लोग लंबी अवधि के लिए आते हैं। मुझे एक साहब मिले 2 दिन पहले, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया और उन्होंने 5 साल के लिए लगाया। इत्तेफाक से क्या हुआ, वो 1 लाख 1.25 लाख हो गया, और वो मुझे पता लगा 1 हफ्ते में बाहर आ गए उसमें से। मैंने कहा ये तो लंबी अवधि के, छोटी अवधि के, आप तो ट्रेडर बन गए। तो ये थोड़ा सा अगर आप लंबी अवधि रखें तो शायद उनका 1 लाख 3 लाख हो जाता, 4 लाख हो जाता, शायद 5 लाख भी हो जाता है, 2-2.5 लाख। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी शेयर मार्केट में बहुत पेशेंस की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं कि यू नीड ट्रक लोड्स ऑफ पेशेंस इन स्टॉक मार्केट। एंड इट्स ऑल्सो सजेस्टेड, बिकॉज वी आर नेचुरली प्रोन टू रिस्क अवर्जन, कि बार बार मत चेक करिए प्राइस, बिल्कुल कर दीजिए, और जितना आप देखेंगे उतना रिस्क अवर्स होगा। हाँ, रोज नहीं देखना चाहिए, लोगों को आदत पड़ जाती है मार्केट खोल के देख। जो लंबी अवधि वाला है उसको तो मार्केट में लेके कुछ दिन के लिए जबरदस्ती भूल जाए, और कभी याद आए ना तो किसी और कोई मूवी देखने बैठ जाइए, कुछ भी करने लग जाइए, बस अपना ध्यान वहां से हटा लीजिए। क्योंकि बार बार देखना ही आपको इंसाइट करता है उसको बेचने या खरीदने के लिए। बिल्कुल गौरव, लग रहा है मुझे इससे गुजरी हुई है और उनको सब तजुर्बा है इसकी साइकोलॉजी का भी। जी बिल्कुल जी। जयपुर से कमिंग टू दिल्ली, नॉट वेरी फार ऑफ, जगमाल जी फ्रॉम दिल्ली। जगमाल जी, अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मार्केट टीम को। नमस्कार। कॉली साहब, मुझे ये पूछना था, मेरे पास 15-20 साल पुराने कुछ शेयर हैं जो 0 हो गए हैं, मतलब 18 से पहले के। अच्छा। वो कुछ डीलिस्ट भी हो गए हैं जी। उनका मैं लॉस कैसे बुक करूं? 1-1 रुपए के हैं। जगमल जी, पहली बात तो हमें बहुत खेद है इस बात का, जब पता लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे पता लगता है कि किसी का नुकसान हुआ है, और वो भी हम लंबी अवधि की बार बात करते हैं। पता लगा 15-20 साल तक जगमल जी उसमें रहे और उसके बाद वो 0। तो देखिए जगमल जी, अगर तो वो ट्रेड नहीं होते हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ कंपनीज की तो हम बात नहीं करते हैं, आप उस कंपनी के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। शायद वो कोई बायबैक आया हो जो आपको पता ना लगा हो, शायद कंपनी ने कभी कोई ऐसी स्कीम निकाली हो जिसमें बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, या किसी के साथ मर्जर हो गया हो, किसी ने एक्वायर कर लिया हो। तो आप यही हो सकता है कि एक शेयर उठाएं जगमल जी, और एक शेयर के बारे में पूरी तहकीक, इससे पहले कि उनको फाड़ के फेंका जाए और इससे पहले कि उसको राइट ऑफ करके एक बुरे सपने की तरह भुला दिया जाए, मैं समझता हूं एक बार उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल करने की कोशिश करिए, और अगर आपको कुछ फायदा होता है हमें खुशी होगी,
और खेद तो हमने पहले ही व्यक्त किया, क्योंकि किसी का नुकसान होता है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जगमल जी दुख होता है। पर कोशिश जरूर करिएगा कि उन कंपनीज का क्या बना है, आप पता करेंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाता है, या कोई जान पहचान के अच्छे ब्रोकर आपके आसपास हो उनसे आप पता करिए, क्योंकि हम कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करते, नहीं तो हम आपको बताते, तो आप करिए। उसके बाद आप इनको फाड़ने का, फेंकने का, भूलने का निर्णय लीजिएगा। गोपाल के पास जाने से पहले बता दें कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार छठे हफ्ते वृद्धि दर्ज की गई है। सऊदी अरब और रूस द्वारा आपूर्ति कटौती सितंबर तक बढ़ाए जाने से आपूर्ति की चिंताएं बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $86.24 रहा, जबकि अमरीकी क्रूड की कीमत प्रति बैरल $82.82 रही। गोपाल के पास चलना पड़ेगा, मुंबई। गोपाल, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। कर दिए सर, मैं कोहली साहब का नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी। प्रॉब्लम टीडीएस है जी। ये लोग कंपनी ने, मैं टीडीएस क्लेम करने को गया तो कंपनी ने टीडीएस पुटअप भी नहीं किया है। ओहो। बात किया तो सर अच्छा हम कर देंगे, आप बाद में क्लेम करो। सर ये पिछले एक महीने से रखा रहा है, तो क्या मैं IIT में कंप्लेंट डालूं क्या? तो मेरे को बताएंगे मेरे को क्या करना चाहिए? जी हाँ गोपाल, बिल्कुल डाल सकते हैं। टीडीएस काटना और टीडीएस काट के जमा कराना एक कंपनी की नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी है। इनकम टैक्स लॉज में बहुत सख्त प्रोविजंस हैं इसके लिए। आपको हैरानी होगी सुन के, इसमें प्रोसिक्यूशन भी है कि अगर किसी का आप टैक्स काट के जमा नहीं कराते हैं तो ये बहुत बड़ा इनकम टैक्स में बड़े ऑफेंसेस में से एक ऑफेंस में गिना जाता है। बिल्कुल गोपाल जी, आप कंप्लेंट करिए। और जहां तक आपकी अपनी आईटी रिटर्न की बात है, आपको फाइल तो करनी पड़ेगी और आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, बाद में आप उसको कंपनी से क्लेम करेगा। पर आप बिल्कुल कंप्लेंट डालिए, कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे करी जाएगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। Before we move on to our next caller, a quick look at the U.S. markets. On Wall Street, key indices fell yesterday, while the U.S. dollar and Treasury yields were lower after a government jobs report showed a slowing but still tight U.S. labor market. So the Dow Jones Industrial Average fell 150 points or 0.4% to close at 35,066. The S&P 500 shed 24 points or 0.4% to end the day at 4,478. The tech-heavy Nasdaq Composite Index slipped 50 points or about 0.4% to 13,909. हमारे साथ वैसे रेवाड़ी से जयपाल जी जुड़े हुए हैं, लेकिन जयपाल जी हमें आपसे माफी मांगनी होगी, वक्त इतना नहीं है कि हम आपको सवाल को हम ले सकें अपने कार्यक्रम में। बहरहाल हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, इन्फॉर्मेटिव सवाल पूछे और उसका उतना ही तसल्ली से समझाकर शरद जी ने जवाब दिया। आप सबका और खासतौर पर शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गौरव। Thank you, Sharadji, once again for coming on to the program. And now, before we close, a quick reminder of the headlines. Health Minister Mansukh Mandavia says the country has started manufacturing 38 active pharmaceutical ingredients in the last 1.5 years. Government allocates 1,39,579 crore rupees to extend BharatNet in 6,40,000 villages. And on Wall Street, the Dow falls 0.4% on a government jobs report showing a slowing but still a tight U.S. labor market. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश ने पिछले 1.5 सालों में 38 सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व अवयव बनाने शुरू किए हैं। देश के 6,40,000 गांवों में भारतनेट का किया जाएगा विस्तार। सरकार ने 1,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की और अमेरिकी बाजारों में रोजगार के कमजोर आंकड़ों की वजह से डाउ जोन्स 0.4% गिरा। And that's all. नमस्कार। नमस्कार।